चलो if yes, the balance sheet of Sham Traders Pune is as follows. Partner share profit and losses as 5:2:3. So the profit sharing ratio is 5:2:3. That is been given to us. Now liability side we have three partners, Ramba, Menka and Urvashi. So the capital accounts of Ramba, Menka and Urvashi are being given to us. Then we have creditors, bills payable and general reserve. Okay? Of which capital account will go to partners capital account, credit side. Then creditors will go to liabilities, bills payable will go to liabilities, and general reserve will be distributed among the partners on the credit side of partners capital account. So partners capital account के credit side में we are going to distribute the general reserve among partners. ठीक है? Then on the asset side we have plant and machinery that will go to asset, building will go to asset, stock will go to asset, debtors will go to asset. RDD पे अगर adjustment होगा तो we will be writing it in the bracket in the inner column. ठीक है? Then dear students, bank will go to its own account as an opening balance. ठीक है? ये normally हम जो करते हैं similar posting we have done. Now who is going to retire? Let us see. Menka. Okay, Menka is retired. तो Menka is going to retire. यानी Menka मतलब वो middle partner है देखो. ठीक है? So dear students, most of the cases में last partner देते, लेकिन ये केस में वो middle partner retire हो रही है. So Ramba, Menka and Urvashi में से Menka retire हो रही है. Is that clear? From the business on 1st April 2019 on the following terms, the assets were revalued as under. Stock at 28,000, so I'm putting a tick mark on stock. Building is appreciated by 10%, I'm putting a tick mark on building. RDD is to be increased up to 1,000, I'm putting a tick mark on RDD as well. ठीक है? Plant and machinery is to be depreciated by 10%, I'm putting a tick mark on plant and machinery also. बराबर है? The goodwill of retiring partner is valued at 8,000. Goodwill किसका बोला है? Clearly बोला है goodwill of retiring partner. यानी ये सिर्फ retiring partner का goodwill है dear students. This is not the firm's goodwill. पूरे फर्म का गुडविल नहीं है, ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है. सो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को कितने पे वैल्यू करना है? 8,000 वैल्यू करना है का मतलब डियर स्टूडेंट वी हैव टू रेज दैट गुडविल. ठीक है? सो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल को हमें रेज करना है एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक. रिटर्न बैक मतलब रिटर्न ऑफ करना है. लेकिन हमेशा हमने क्या सीखा है? रिटर्न ऑफ किस में करते हैं गुडविल? गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ इन गेन रेशियो. व्हेनेवर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हम लोग रेस करते हैं, हम लोग गेन रेशियो में उसे राइट ऑफ करते हैं. लेकिन ये सब में स्पेसिफिकली बोला है कि इट इज टू बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 5:3. So dear students, since they have specifically said कि it is to be written off in the new profit sharing ratio, हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उसे राइट ऑफ करेंगे एंड नॉट इन द गेन रेशियो इन दिस सम. इज दैट क्लियर? ओके, अगर कुछ नहीं बोलते थे, गुडविल बी रिटर्न ऑफ खाली बोलते थे तो हम लोग गेन रेशियो कैलकुलेट करते थे, या गुडविल इन इट शुड बी एडजस्टेड इन गेन रेशियो बोलते थे, फिर भी गेन रेशियो में करते थे. लेकिन ये सब में उन्होंने क्लियरली बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको गुडविल राइट बैक करना है. क्लियर विद दिस? देन फर्दर अमाउंट ड्यू टू मेनका, मतलब मेनका को जो लास्ट में पे करना है क्योंकि वो रिटायर हो रही है इसलिए फर्म को उसे पे करना पड़ेगा. उसका कैपिटल अकाउंट और वो जो भी एडजस्टमेंट रहेगा उसका सबका अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा. लेकिन वो अमाउंट कंपनी के पास शायद ना हो, इसीलिए कंपनी क्या कर रही है, उस कंपनी बोल रहा है, इसलिए फर्म क्या कर रही है, उसका सारा अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है. Is that clear? So in this sum, the whole amount that is payable to Menka is to be transferred to her loan account. I hope this is clear. Okay, so there is no payment in cash to Menka. All the amount is to be transferred to her loan account. I hope that's clear. और कितना ट्रांसफर करना है अमाउंट, यही तो हमें कैलकुलेट करना है. जब मेनका का अकाउंट हम क्लोज करेंगे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट या लॉस हम ट्रांसफर करने के बाद, जब मेनका का अकाउंट हम क्लोज करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा मेनका को कितना अमाउंट फर्म को पेएबल है. इज दैट क्लियर? ओके, चलो. सो फॉर दिस यू हैव टू ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट. Yes, sir. So let's move on for this. First what we are going to do, we are going to transfer this to capital accounts. चलो पहले पोस्टिंग शुरू करते हैं. कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, तीनों पार्टनर्स का नाम है हमें, तो तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं. चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन रंबा 36,000, मेनका 32,000,
and Urvashi 17,600 if I am not wrong. बराबर है? Yeah, Urvashi 17,600. So this we have taken it to partners capital account credit side. Then we have creditors 20,000 and bills payable 1,200. So creditors and bills payable we are going to take it to liabilities. Okay? So creditors 20,000. I'm going to write it in the outer column because I don't have a tick mark on this. And creditors के बाद I have bills payable. Bills payable again in the outer column 1,200. I hope this is clear. Okay. So creditors and bills payable I have written it in the outer column. Then we have general reserve. Now, as you know, whatever general reserve appears in the balance sheet, that we have to distribute among old partners, and we have 3 old partners, so we'll be distributing it 3 old partners in their old ratio. So 14,000 ka general reserve is to be transferred in the ratio of 5:2:3 among the 3 partners. ठीक है? So चलो ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व 14,000 का. So we'll be doing a working note. Distribution of general reserve in the ratio 5:2:3. So let's distribute general reserve in the ratio 5:2:3. Let me once again check the ratio. 5:2:3 है ना? हाँ, 5:2:3. Okay, and general reserve 14,000 का है. Ramba, Menka and Urvashi are the 3 partners. So Ramba, Menka and Urvashi are the 3 partners. ठीक है? And general reserve we have of 14,000. So old partners में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. यहाँ पे 3 old partners है तो तीनों को मिलेगा. ठीक है? 5/10 10 हो रहा है टोटल रेशियो. 5 + 2 7 + 3 10. 5/10. Menka will be getting a share of 2/10 and Urvashi will be credited with a share of 3/10. ठीक है? So चलो 0 से वो कैंसिल करते हैं सब जगह. So this is going to be 1,400 या 14 5 is 70. 7,000. Okay, so 14 5 70 आता है. So this is going to be 7,000. Then 14 2 is 20. It's going to be 2,800 and 4,200. 14 3 is 42. So this is going to be 4,200. Hope this is clear. Okay. So total करेंगे तो बराबर आएगा डियर स्टूडेंट 14,000 का. तो 14,000 का जनरल रिजर्व 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ 7,000, 2,800 and 4,200. इज दैट क्लियर? चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं बाय जनरल रिजर्व. तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 7,000, 2,800 and 4,200. I hope this is clear. Okay. Then dear students, we are moving on to the asset side. Asset side where we have plant and machinery of 32,000, building of 40,000, and for both we have tick mark. So plant and machinery 32,000, building 40,000. Plant and machinery 32,000 in the inner column. Building 40,000 in the inner column. दोनों के ऊपर टिक मार्क है. So I am written it in the inner column और एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. Then dear student, after that I have stock 20,400 का है. So let me write down stock 20,400. Again in the inner column, stock के ऊपर भी टिक मार्क है. Then dear student, we have debtors. एंड डेटर्स कितने का है डियर स्टूडेंट? डेटर्स है 16,800 का. उसमें से आरडीडी 800 लेस करना है, लेकिन आरडी के ऊपर टिक मार्क है. सो डियर स्टूडेंट, डेटर्स वी विल बी राइटिंग 16,800 इन द इनर कॉलम. लेस आरडीडी लिखना है, लेकिन आरडीडी को हम लोग टिक मार्क होने के कारण ब्रैकेट में लिखेंगे 800 और ब्रैकेट को हम जो भी आरडीडी पे एडजस्टमेंट है वो हम ऐड करके या लेस करके ब्रैकेट को क्लोज करके उसको कॉलम में अमाउंट लेके जाएंगे एग्जैक्टली. और फिर डेटर्स से डिडक्ट करके हम आउटर कॉलम में डेटर्स का नेट फिगर लिखने वाले हैं. दिस इज व्हाट वी नॉर्मली डू. ठीक है. फर्दर
we have bank account. Bank account is an opening balance. So before retirement we have a bank balance of 12,800. ठीक है, तो चलो बैंक में लिखते हैं to balance brought down 12,400. Is that clear? So we have a bank balance of 12,400. Clear? So that I have written it as an opening balance. Then dear student, let us move on to the revaluation part. So revaluation में the first revaluation that we have to do is stock. Stock is to be revalued at 28,000. That's what they have said. So stock को 28,000 करना है. This is stock dear student. 28,000 reval करने बोला है. So 28,000 outer column में आएगा. And यहाँ पे 28,000 बनाने के लिए हमको 20,400 में से 20,400 को माइनस करके हमको ये पता चल रहा है कि स्टॉक का वैल्यू को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा. सो एड एप्रिसिएशन बोलो या इंक्रीज बोलो, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक. सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक वी हैव टू डू इट टू द ट्यून ऑफ 7,600. बराबर है. सो 7,600 का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे स्टॉक का, तब जाके वो 28,000 होगा. एंड जैसे हमने एसेट का वैल्यू को इंक्रीज किया, इट बिकम्स अ गेन फॉर अस, और हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे. बाय स्टॉक 7,800. 800 नहीं 600, सॉरी 7,600. I hope this is clear. बराबर है. Then dear student, after stock we have building is to be appreciated by 10%. चलो building को appreciate करता है 10%. So building में जाके add करेंगे, add appreciation at the rate of 10%. And ये 10% कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 10% में एक जीरो कम कर दो तो 10% हो जाएगा. So amount में एक जीरो कम किया तो 4,000 आ रहा है. So 10% is 4,000 and I'm going to add 4,000. So building is going to be 44,000. Again dear student, यहाँ पे एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो हमारे लिए गेन है. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं उसका सेकंड इफेक्ट, बाय बिल्डिंग 4,000. ठीक है. Then dear student, the next item that we have is RDD. RDD is to be increased up to 1,000. चलो RDD को 1,000 तक इंक्रीज करना है. बराबर है. अप टू बोला है, अप टू 1,000 बोला है. और RDD है कितना हमारे पास? RDD हमारे पास अभी सिर्फ 800 है. उसको हमें कितना बनाने बोला है? अप टू 1,000. यानी RDD 1,000 करने के लिए हमें यहाँ पे RDD में ऐड करना पड़ेगा. कितना अमाउंट हम ऐड कर रहे हैं? 200 हमें ऐड करना पड़ेगा. So old RDD already we have 800 and we will be adding 200 to that RDD. So new RDD is 200, so that the total RDD will be 1,000 as they required in the sum. Okay, 1,000 का RDD रहेगा and 1,000 का RDD जब डिडक्ट करेंगे, so the value of debtor is going to be 15,800. That is the net value of debtors after deducting RDD. बराबर है. अब ये स्टूडेंट्स सेकंड इफेक्ट किसका देना है? तो सेकंड इफेक्ट ये 200 का सिर्फ देना है क्योंकि हमने 200 का ही आरडीडी इंक्रीज किया है. 800 का ऑलरेडी था. एग्जैक्टली. यहाँ पे मैं बार बार रिपीट करता हूँ, स्टूडेंट गलती क्या करेंगे? 1,000 का आरडीडी का सेकंड इफेक्ट लेके जाएंगे, बट दे विल बी रॉन्ग डियर स्टूडेंट, बिकॉज ये 1,000 में से 800 ऑलरेडी था. आपने खाली 200 का इफेक्ट दिया है. दैट मीन्स सेकंड इफेक्ट विल बी ओनली फॉर दिस 200. ठीक है. और वो भी हमने इंक्रीज किया है आरडीडी, और जब भी हम आरडीडी इंक्रीज करेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा टू आरडीडी, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है क्योंकि आरडीडी हमने बढ़ाया है 200 का. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. देन फर्दर डियर स्टूडेंट, दे हैव सेड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. चलो प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करते हैं. सो प्लांट एंड मशीनरी में लेस डेप्रिसिएशन एंड ये डेप्रिसिएशन 10% बोला है. अच्छी बात है. 10% है तो टोटल अमाउंट वैल्यू में से एक जीरो कम करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 3,200 और उसको लेस करते हैं. सो 3,200 जब लेस करेंगे, सो इट इज गोइंग टू बी 28,000. कितना आएगा? 32,000 में से 3,200 लेस करेंगे तो 32,000 माइनस 38,800. दैट इज गोइंग टू बी 28,800. And the second effect of this depreciation will go to revaluation account debit side. Depreciation is a loss for us, so revaluation account के debit side में आएगा to plant and machinery.
3200. I hope I'm clear. बराबर है? Then dear student, as far as the second adjustment is concerned, they have asked us to raise the value of goodwill. लेकिन जो goodwill का value raise करना है वो सिर्फ किसका raise करना है? Retiring partner. So we have to raise the value of only retiring partner. बराबर है? यानी खाली मेनका का goodwill raise करना है. मेनका is the retiring partner. So मेनका का goodwill account ही हमें सिर्फ raise करना है, and not the firm's goodwill that we are raising. Okay? So चलो एंट्री पास करते हैं रेस का. रेस जब भी गुडविल करते हैं, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं 2, लेकिन हम फर्म का गुडविल रेस करते थे. ये रेस का एंट्री कभी भी डेबिट में करना है, ये हमें पता है. सो हम डेबिट में करेंगे गुडविल का, लेकिन यहाँ पे फर्म का गुडविल रेस करेंगे तो तीनों पार्टनर में बांटते थे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स 3 है तो ओल्ड पार्टनर्स में बांटते थे. यहाँ पे तीनों पार्टनर, फर्म का गुडविल रेस नहीं हो रहा, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का हो रहा है, इसलिए 2 सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट होगा टू मेनकास कैपिटल अकाउंट. इज दैट क्लियर? ठीक है. एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट इज टू बी रेज्ड इज 9000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेट मी चेक वंस अगेन. सॉरी 9000 नहीं है. द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी रेज्ड इज 8000. ठीक है. सो 8000 का गुडविल हमने रेज किया टू मेनकास कैपिटल अकाउंट 8000. एंड इसका सेकंड इफेक्ट सिर्फ मेनका के कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल हमने रेज किया है. बाय गुडविल एंड मेनका के कैपिटल अकाउंट में 8000 एंड ये बाकी दोनों को कोई भी गुडविल क्रेडिट नहीं होने वाला है. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब खाली रेज नहीं करने बोला है उन्होंने रेस करने नहीं बोला है. रेस के साथ साथ क्या बोला है? रिटर्न बैक भी करो, यानी राइट ऑफ भी करना है. और राइट ऑफ के लिए अपने हमें न्यू रेशियो में राइट ऑफ करने बोला है, और वो लोग अच्छे लोग हैं, न्यू रेशियो भी दे दिया है. और व्हाट इज द न्यू रेशियो बीन गिवन टू अस? 5:3. asked you us to write off the value of goodwill of 8000 in the new ratio 5:3 among the remaining partners. ठीक है. तो चलो let us distribute goodwill या write off goodwill. So goodwill written off in new ratio, and new ratio is given to us as 5:5 कितना बोला है? 3 बोला है. ठीक है. So is given to us as 5:3. ए वैसे नहीं भी देते थे तो देखो डियर स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो था 5:2:3. बराबर है. उसमें से कौन रिटायर हो गए? मेनका. ये मिडल वाली पार्टनर रिटायर हो रही है ना, मेनका. तो मेनका का शेयर अगर निकाल दो तो बचा कितना बोलो? 5:3 बचा. एग्जैक्टली. सो डियर स्टूडेंट, न्यू रेशियो डायरेक्टली हमको ओल्ड रेशियो से भी पता चल रहा था 5:3 का है, फिर भी उन्होंने दे दिया है, तो चलो अच्छी बात है. सो लेट्स टेक न्यू रेशियो एज 5:3 एंड वो न्यू रेशियो में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो रंभा विल बी द रिमेनिंग पार्टनर एंड उर्वशी विल बी अनदर पार्टनर. ठीक है. 8000 का गुडविल है. सो 8000 इंटू यह आएगा 5/8 आएगा, क्योंकि 5+3 8 होता है, और ये आएगा 3/8 इसका शेयर. ठीक है. सो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1000 हो जाएगा. सो 1000 into 5 is going to be 5000 and 1000 into 3 is going to be 3000. तो 8000 का गुडविल बराबर आ रहा है. सो गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द न्यू रेशियो एज 5000 and 3000. चलो, दिस इज हाउ गुडविल इज टू बी रिटर्न बैक या रिटर्न ऑफ. तो गुडविल अकाउंट में जाते हैं, रेज यहाँ पे करते हैं, और रिटर्न ऑफ हम क्रेडिट में दिखाते हैं. सो दिस इज द प्लेस वेयर वी राइट बैक गुडविल या राइट ऑफ गुडविल. इज दैट क्लियर? सो बाय न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो लिखो या दोनों पार्टनर्स का नाम लिखो. तो मैं दोनों पार्टनर्स का नाम लिख रहा हूँ. न्यू रेशियो मतलब न्यू पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स लिखो, या एक्चुअली पार्टनर्स का नाम लिखो. सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ बोथ द रिमेनिंग पार्टनर्स एंड दे आर बाय रंभा कैपिटल अकाउंट, that is 5000, and by Urvashi's capital account, and that's 3000. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट रिटर्न ऑफ का.
एंड यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो डियर स्टूडेंट सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट में हम लिखेंगे टू गुडविल, रंबा 5000, गलती से मेनका के नाम पे नहीं लिखना, मेनका इज अ रिटायरिंग पार्टनर, रंबा 5000 और उर्वशी 3000 है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। चलो ये हो गया गुडविल का एंट्री, जहां पे हमने गुडविल का रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर रेस किया एंड न्यू रेशियो में राइट ऑफ किया, ठीक है। देन द लास्ट थिंग बोला है उन्होंने, अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, लेकिन जैसे कितना अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर करना है वो तो कब पता चलेगा, जब मेनका का अकाउंट हम क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट, और मेनका का कैपिटल अकाउंट क्लोज कब करेंगे, जब हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू गेट दिस अमाउंट, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, get the revaluation profit or loss, distribute it among the old partners, and then to close Menka's account in order to get the amount due to Menka. Is that clear? चलो let us do that. Revaluation account को close करते हैं. So on the credit side, dear students, the total of credit side seems to be more. So 7 plus 4 होता है 11,000. So ये 11,600 है, और डेबिट में भी हम लिखेंगे 11,600। ये डेबिट का टोटल 3,400 आ रहा है, 3,200 प्लस 200 इज 3,400, तो 11,600 में से 3,400 को हम डिडक्ट करेंगे तो कितना बचता है 002, और 11 में से 3 गया, Is that clear? So this is going to be 8,200. Clear with this? चलो अब ये 8,200 हमारे लिए क्या है डियर स्टूडेंट? The 8,200 is the revaluation profit for us, and that revaluation profit is to be transferred to old partners. और old partners कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? So we have 3 old partners, क्योंकि ये रिटायरमेंट का सम है, एडमिशन का सम में ओल्ड पार्टनर्स 2 ही होते हैं, रिटायरमेंट का सम में 3 ओल्ड पार्टनर्स है। सो वी विल बी राइटिंग 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड ओल्ड पार्टनर्स में आएगा रंभा, मेनका एंड उर्वशी, ठीक है। So let us calculate the distribution of revaluation profit in the old ratio. So distribution of revaluation profit in old ratio बराबर है, ओल्ड रेशियो कितना है 5:2:3, ठीक है। चलो सो रंभा, मेनका एंड उर्वशी, and the revaluation profit is 8,200. So 8,200, 8,200 and 8,200 का revaluation profit तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रंभा के लिए 5/10, मेनका 2/10 एंड उर्वशी 3/10। तो 0 कैंसिल करते हैं सबके लिए, ठीक है। So this is going to be 820 into 5. 820 into 5 आएगा 4100, 4,100 आएगा। 820 into 5 करेंगे तो फिर ये आएगा 82 into 2 बराबर है। So 820 into 2 करेंगे तो हमें आएगा 1,640। तो दिस इज गोइंग टू बी 1,640। फिर हम 820 into 3 करेंगे। So 820 into 3 जब हम करेंगे तो हमें आएगा 2,460, ठीक है। So इनका टोटल जब करेंगे तो बराबर 8,200 आएगा। So 8,200 is distributed among the 3 partners as 4,100, 1,640 and 2,460, ठीक है। चलो, so Ramba will be getting a share of 4,100, Menka 1,000,
2,640 and Urvashi 2,460. Okay, so this revaluation profit will be credited to their capital account. So capital account में जाके हम लिखते हैं by revaluation account. You can either write revaluation account or profit and loss adjustment account, both are one and the same. So 4,100, then 1,640 and 2,460. I hope this is clear. Dear students, अब किसका अकाउंट पहले क्लोज करना है? तो याद रखो, दिस इज अ रिटायरमेंट वाला सम. हमको मेनका को कितना मेनका को पेमेंट करना है जो हम उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं. सो दैट मींस वी हैव टू क्लोज फर्स्ट मेनका's capital account because she is the retiring partner. Is that clear? So let us find what is the amount to be payable to मेनका on her retirement. मेनका को रिटायरमेंट के टाइम कितना अमाउंट पे करना है ये ढूंढते हैं. सो 32,000 उसके कैपिटल का था. देखो मैं बोल के हम टोटल कर रहा हूँ. 32,000 मेनका का कैपिटल का अमाउंट देना था. फिर 2,800 उसको जनरल रिजर्व का हमने क्रेडिट किया था. फिर 8,000 उसको गुडविल क्रेडिट किया गया है, प्लस 1,640 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट उसको क्रेडिट किया गया है. ठीक है, सो टोटल क्रेडिट है उसका 44,440. I hope this is clear. 44,440 is the total value credited to Menka. And dear students, debit में अगर हम देखें, so we don't have any amount as far as the debit of Menka is concerned. So 44,440 क्रेडिट में, डेबिट में कोई भी अमाउंट ना होने के कारण द बैलेंसिंग फिगर इज ऑल्सो गोइंग टू बी 44,440. एंड ये जो वैल्यू है जो मेनका को पे करना है वो उन्होंने क्लियरली बोला है हम पे नहीं कर रहे, हम उसका मेनका का जो भी अमाउंट है वो क्या कर रहे हैं, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. और डियर स्टूडेंट वैसे भी लॉजिकली देखो, हमको 44,440 मेनका को पे करना था और बैंक में देखो, बैंक में हमारे पास कितना रुपया है, सिर्फ 12,400 रुपीज है. सो वी वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे 44,440. इज दैट क्लियर? सो इसीलिए हमने मेनका को बोला वी आर नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ टू पे 44,440. तो आपका जो अमाउंट है वो हमारे पास ही रहेगा, लेकिन हमारे पास वो आपका लोन अकाउंट बोल के रहेगा. सो दिस विल बी कॉलिंग दिस एज मेनका's लोन अकाउंट. इज दैट क्लियर? जिसके ऊपर हम उनको अगले साल से इंटरेस्ट देना शुरू करेंगे. ठीक है, और जैसे यहाँ पे लोन अकाउंट क्रिएट हुआ, लोन इज अ लायबिलिटी फॉर अस, तो इसका सेकंड इफेक्ट हम लायबिलिटी साइड में लेके आएंगे. तो लायबिलिटी साइड में एक नया आइटम आया, मेनका's लोन अकाउंट. एंड दैट इज 44,440. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, चलो, दिस इज ऑल अबाउट मेनका's लोन अकाउंट. ये रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट हो गया. अब डियर स्टूडेंट्स, ये सब में कैपिटल एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो हमें रिमेनिंग पार्टनर को स्ट्रेट अवे क्लोज करना है और रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है. आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ मेनका रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस कितना आ रहा है चेक करते हैं. सो चलो उर्वशी का अकाउंट को टोटल करते हैं. सो उर्वशी का क्रेडिट में कैपिटल था 17,600 प्लस 4,200 प्लस 2,460, लेकिन सॉरी द टोटल इज 24,260. बराबर है. सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टोटल दिस फॉर रंबा. तो 36,000 प्लस 7,000 प्लस 4,100. सो रंबा का क्रेडिट का टोटल है 47,100 का. द सेम टोटल आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, 47,100 and 24,260. I hope this is clear. Now dear student, as far as debit is concerned, debit में देखो उर्वशी का डेबिट में 3,000 रुपीज है. सो उर्वशी का डेबिट में 3,000 रुपीज होने के कारण बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? सो टोटल में से 3,000 हम लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी 21,260. बराबर है. 3,000 लेस किया, 24,000 था, 24,000 में से 3,000 लेस किया तो 21,000 आएगा. क्लियर विद दिस? सो बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी 21,260 as far as Urvashi is concerned. And for Ramba, the capital account is total is 47,100
तो उसमें से 5000 अगर लेस करोगे सो दिस विल बी 42, 7 में से 5 का 2 बचता है, 42,100 विल बी द बैलेंसिंग फिगर. सो यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, देयर वाज नो कैपिटल एडजस्टमेंट इन दिस सम, तो स्ट्रेट अवे जो अमाउंट आया उसी को हमने बैलेंसिंग फिगर रखा है. ठीक है. एंड दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकिंग इट टू लायबिलिटी साइड एज पार्टनर्स कैपिटल. सो चलो, पार्टनर्स कैपिटल. रंभा का कैपिटल है 42,100 का. देन उर्वशी का 360. Am I right? Okay. चलो. Yes. Then dear students, as far as goodwill account is concerned, रेज होके राइट ऑफ हुए तो गुडविल टैली हो गया. अगर सिर्फ रेज होता था तो गुडविल अकाउंट में बैलेंस आता था जो हम बैलेंस शीट में लिखते थे. ठीक है. और यहाँ पे बैंक अकाउंट में देखो, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 12,400 था और पूरे रिटायरमेंट के टाइम बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, इसलिए बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी उतना ही आ रहा है, 12,400. सो क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम बाय बैलेंस carried down 12,400, and this I'm going to take it to the asset side as bank balance 12,400. I hope this is clear. Let's total the liability side first. 63,360 plus 44,440 plus 20,000 plus 1,200. ठीक है. 1,29,000. So the total of liability side is 1,29,000. ठीक है. Let us total the asset side का amounts. So it is 28,800 plus 44,000 plus 28,000. We're going to add 15,800 and 12,400. So the asset side ka amount is also equals to 1,29,000. Okay. So both assets and liabilities have a figure of 1,29,000. So we can say that our balance sheet is tally.